Good morning, grade 9. Let's continue our algebraic identities part 2. So the next identity is x plus y to the power to the power 3, or we can say x plus y ka whole cube is x cube plus y cube plus 3xy, then multiply x plus y. So how can we solve the question? By using this identity. Look at here, 3a plus 4b ka whole cube. So we just compare left hand side of the identity and this question. So left hand side is given to us, we need to convert into right hand side by using the identity. So let x equals to 3a, as in identity it is x and y, and here we have 3a plus 4b, 3a and 4b. So x equals to 3 and y equals to 4b. Just put down the values of x and y in this identity like this. Then simply solve. 3 ka cube 27, a ka cube a cube, 4 ka cube 64, b ka b cube, 3 into 3 into 4 will be 36, a b as it is, then 3a plus 4b as it is. Now what will happen in the last step? The two things will be as it is. And what about 36ab? 36ab will be multiplied with 3a as well as 4b, and you can see the answers. Fine. So this will be the last step. What about in minus? If this identity in plus form, then in minus, x minus y to the power 3 equals to same identity, only one change is there. And what is the change? Can you guess? Yes, the sign. Jahan jahan plus, wahan minus ho gaya. Fine. So let's have one example. 5p minus 3q equal to the power 3. So just put the value of x is 5p and value of y equals to 3q. Just put the value here like this, 5p cube minus 3 cube minus 3 5p into 3q, then in bracket 5p minus 3q, and same in this way we have solved this one also. We have to solve like that, and at the last multiply this in both and you got the answer. Fine. Let's see the other example. 104 to the power 3. What will happen in this type of question? And we have to evaluate it. So how can we evaluate? First of all, you have to expand it. 104 को expand करना है 100 plus 4, और अगर ये 96 होता तो 100 minus 4 हो जाता. Fine. तो यहाँ पे plus, तो plus वाला identity use करेंगे. We will use this identity. So 100 plus 4 to the power 3. तो x plus y का cube. Now x cube plus y cube plus 3xy, then in bracket x plus y. So what is x? X is 100 and y is 4. Just put the values and find the answer like this. 1124864 will be the final answer. One more example. 8x to the power 3 plus 27y to the power 3 plus 36x to the power 2 into y and plus 54x to the x into y to the power 2. So the question is given in what form? In the form of right hand side. Can we say like this? Yes. there is one little difference. 3xy जो है वो यहाँ common है, but here in question वो अंदर included है into करके. तो we can guess the identity. सभी जगह plus है तो obviously plus वाली identity use होनी है, but कैसे? So let's see. Factorize करना है तो factorize में हम factors निकालते हैं like this. So let's see how. 8 को पहले break करेंगे 2 का cube and x का already cube है तो we can write 2x का whole cube. Same 27y cube का लिखा 3y का whole cube. Then 36 will be broken down in this way. Like 3, हमें required क्या था? 3, क्योंकि बाहर 3 required है, यहाँ पर तो हमें 3 के फॉर्म में तोड़ना होगा उसे, तो 3 तो रहेगा. बट व्हाट अबाउट x एंड y? तो x एंड y क्या निकले अपने? 2x निकला है, y जो है वो 3y है. तो कैन वी राइट लाइक दिस? 3 तो यहाँ से ब्रेक कर दिया है. अब 3 अगर ब्रेक करते तो 36 में से 3 डिवाइड कर ले तो बचेगा क्या? 12. सो 12 को भी ब्रेक करना होगा तो 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4x स्क्वायर एंड 3y. अब व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस ऑल टर्म्स यू विल गेट 36x स्क्वायर y. यू जस्ट सी हियर कैसे हमने ब्रेक करा है. इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि कैसे ब्रेक करना चाहता है वो. 54 को ब्रेक करा, 3 के फॉर्म में वापस 3 बाहर निकाला और 2x एंड 9y स्क्वायर लाइक. तो y स्क्वायर क्यों? क्योंकि y स्क्वायर रिक्वायर्ड है यहाँ पर. नाउ 2x क्यूब एज इट इज, 3y क्यूब एज इट इज, देन 4x स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 2x का होल स्क्वायर. Yes, 2x का होल स्क्वायर. नाउ यू कैन कंपेयर. जो हमारा x, जो मेन x होता है x का क्यूब, वो हमारा आ चुका है यहाँ पर 2x. देन जो y होता है वो 3y है यहाँ पर. 2x एज इट इज, 9y स्क्वायर को ब्रेक करता है 3y का होल स्क्वायर. नाउ यू कैन कंपेयर a क्यूब प्लस b क्यूब, और सॉरी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy प्लस x प्लस y.
तो नाउ यू कैन कंपेयर दिस आइडेंटिटी मैचेस दिस. सो हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया 2x प्लस 3y का होल क्यूब. सो इन दिस वे वी कैन फैक्टराइज ऑल्सो. नेक्स्ट आइडेंटिटी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz. सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो तो यू कैन कन्वर्ट इन दिस फॉर्म. x प्लस y प्लस z multiply x square plus y square plus z square, then minus sign minus xy minus yz and minus zx. So you need to learn this identity for solving the question. So the question is given to us 8x cube plus y cube plus 27z cube minus 18xyz. So how can we recognize which identity we can use, because we have discussed lots of questions. So you just compare द टर्म्स इन द क्यूब फॉर्म. तो यहाँ पे तीनों टर्म्स क्यूब में दी हुई है, तो दैट मीन्स यहाँ पर तीनों क्यूब में आ रही है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा. यहाँ पर यहाँ पर जो यूज हो रहा था वो 2 टर्म क्यूब में आ रही थी, दैट मीन्स हमें ये वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, ये इधर ये और ये. तो हम ऐसे गैस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इजीली. सो हमें पता है कि अब ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, बट नॉट एक्जैक्टली इन दैट फॉर्म. तो हमें यहाँ पे ब्रेक करना होगा. 8 को ब्रेक कर सकते हैं 2 के फॉर्म में, बिकॉज 2 का क्यूब होता है तो 2x का होल क्यूब. y तो y का क्यूब ही रहेगा. 27 हो जाएगा 3z का होल क्यूब, बिकॉज 3 का क्यूब होता है 27, z का क्यूब z क्यूब. ना अब इसको भी ब्रेक करना होगा. क्यों? क्योंकि 3 के फॉर्म में आंसर है. तो माइनस चाहिए, तो माइनस ऑलरेडी है फॉर्चुनेटली, बट अगर माइनस नहीं होता तो फिर हमें यहाँ पे गैस करना पड़ता किसी एक के साथ माइनस होता. बट अभी नहीं करेंगे क्योंकि माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो माइनस एज इट इज. देन 3 चाहिए तो 3 निकाला हमने, 18 में से 3 निकाल लिया तो 6 बचेगा. अब 6 को हम ब्रेक करेंगे किस फॉर्म में? इनके x, y और z के फॉर्म में. तो हमने जो x था वो लिख दिया एज इट इज यहाँ पे, जो y था वो एज इट इज लिख दिया, और जो z था वो एज इट इज लिख दिया. तो 3xyz हो गया, 3xyz. नाउ वी कैन चेंज इनटू दिस इन दिस फॉर्म लाइक दिस. तो हमने x प्लस वाई प्लस जेड, जो x प्लस वाई प्लस जेड था यहाँ लिख दिया 2x प्लस वाई प्लस जेड, जो हमारा वैल्यू थी, और अंदर जो स्क्वायर के फॉर्म में पुट करना था वो स्क्वायर के फॉर्म में पुट करके हमने सिंपली आंसर सॉल्व करा. तो ये आंसर है हमारा फाइनल. 2 more identities we have. x cube plus y cube equals to x plus y into x square minus xy plus y square. And in minus form, x plus y की जगह x minus y आएगा, बाकी सब as it is रहेगा. No, यहाँ पे भी एक चेंज है, सॉरी, प्लस देन प्लस. तो यू नीड टू लर्न दिस आइडेंटिटी. यहाँ पे कुछ हिट एंड थ्रू नहीं चल सकता कि हम तुक्का मार दे. तो यहाँ पर आपको लर्न करनी ही होगी आइडेंटिटीज, क्योंकि छोटा सा डिफरेंस पूरे आंसर को चेंज कर सकता है. तो प्लस के फॉर्म में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है. माइनस में सिर्फ फर्स्ट वाले जो टर्म्स है उनमें माइनस रहेगा, बाकी सब में प्लस रहेगा. तो वी हैव वन मोर एग्जांपल. अगर क्वेश्चन दिया हो 8m क्यूब माइनस 27n क्यूब इन दिस फॉर्म, यहाँ पे वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं. बट अगर 2 ही नंबर दिए हुए क्यूब के फॉर्म में दिए हुए, तो वी कैन गैस कि ये आइडेंटिटीज में से कोई सी एक आइडेंटिटी यूज हो सकती है. तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाली यूज हो रही है. तो वी जस्ट पुट द वैल्यूज, बट हम पहले 8 को ब्रेक करेंगे 2m के फॉर्म में. हम डायरेक्टली 8 नहीं रख सकते, क्योंकि 8 इज नॉट, ये क्यूब जो है वो m का है, नॉट 8 का. तो हम 2m का होल क्यूब रखेंगे. तो 2m का होल क्यूब क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8. इन द सेम वे 27 किसका क्यूब होता है? 3 का. तो 3n का होल क्यूब रखेंगे. तो ये होल क्यूब हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये 8 को ब्रेक करना था, 27 को ब्रेक करना था. ऐसे आपको कोई और नंबर फेस होते हैं तो आप उनको ब्रेक कर सकते हैं, बट टेक केयर ऑफ वन थिंग कि क्यूब होना जरूरी है, परफेक्ट क्यूब. सो वी हैव पुट द वैल्यू. नाउ 2m जो है वो हमारा x है और 3n जो है वो y है. हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी और फाउंड द आंसर लाइक दिस. तो हमने सबकी वैल्यूज निकाल के आंसर निकाला है. बाकी तो सिंप्लीफिकेशन करना है, नथिंग एल्स. सो आई होप रेस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज जो आज हमने पढ़ी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और उनके एग्जाम्पल्स भी. थैंक यू सो मच.